Okay, so it's 5:05 and it's finally time to begin the session. So, good evening to everybody, and I welcome you all to this session. सबको पता है होली आने वाली है, and as a country known for its rich culture, festivals आते ही, we unveil a treasure trove of flavors, with each region offering its unique twist. Basically हमारे लिए एक फेस्टिवल जो है वो एक एक्सक्यूज बन जाता है to have a great feast. And the numerous festivals of India are enriched with many mouth-watering sweets and lavish meals. Barfi ho gayi, mithai ho gayi, pakoras. These are some of the preparations that one sees during most festivals. And each festival has a distinct set of delicacies. So as Holi coming up towards the end of this month, today we have Chef Bharat Khemani, who will be teaching us some of dishes which are common to Holi. So I welcome Chef Bharat. Chef Bharat is an alumni of IHM Lucknow. He has also worked in a hotel Meridian in New Delhi. Later, he joined his family business, famously known as the Karachi Halwa House, since 1943. They were one of the curators of the traditional Karachi Halwa, and currently he runs two firms, Bharat F&B and Indian Bento. So, welcome, sir. The session is over to you now. Yeah, very good evening to all. Is my voice audible? Yes, sir. Thank you, thank you. We are waiting for you to start. Yeah, definitely. Thank you so much. Thank you. Yeah, as the man said, I'm Chef Bharat, and I'm alumni of IHM Lucknow. I passed out in 2001. Then I joined Hotel La Meridian for a brief period of 1 year. Then I joined my family business, and then the owner also, but I keep my skills polished, so I keep on doing something or the other. And during the lockdown, I had a chance of coming on your Dignity Foundation twice during the lockdown, and it gave me little pride also, and I'm honored. Plus, I got so many blessings also. All are senior citizens, so some of them are my grandmother or grandfather age. So that is the biggest the honor from me to come here. And I'm just 40 years old, and I'm nothing in front of you. All of our nannies and grandmothers, and they are cooking so many good things in their own kitchen, and just learned few skills. And I always say somewhere I go wrong, so please overlook it. So shall I begin now? Yes, sir, sure. Yeah, okay. I'll just change the camera and see. Now I have showing you a few things. I've done a few things ready, and I'll show you few things I'll do. Now, first of all, I am showing you this Holi special gujia. Gujia, everybody knows, is a very common sweet during the Holi, and made some few. This is the common shape everybody does in Holi. So I'll be showing you a little things. I'll change a bit. I'll make it as a sticks, as a spring. Have you eaten spring roll? So I'll roll it in that form as a cigar. I'll show you as a cigar, and then I'll make a dip of a rabdi. I have a milk here, so I'll make a rabdi, and I'll pour it here and serve it in this as a dip. So you can have it as a on the go snack also, and as a dessert also, as a Holi sweet. If some of you don't like the sweet ones which are dipped in the चाशनी, और जो चाशनी में डिप करते हैं वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं फॉर हेल्थ रीजन, और ये मैं इसमें डिप करूंगा. और एक जो मैं बनाऊंगा छैना चाट बनाऊंगा, ये आप देख सकते हैं, ये एक स्पॉन्ज वो मैंने छैना रखा हुआ है. इसको मैं ये इनिशियली तो अभी इसमें बहुत ज्यादा चाशनी है, इसको मैं वार्म वाटर में डाल दूंगा. ये मैंने एक वार्म वाटर करके रखा हुआ है ऑलरेडी.
Please, everybody mute. Yes, I would request everyone to please mute yourselves. Sir, I'll mute everybody and you can unmute yourself. Yeah. Okay. All right. So I've kept this water on the hot plate to make it a little warm, and I will dip these rasgullas into this, so it will become spongy and soft. This water is getting a little warm. You can see the steam coming out, and I'll switch it off this flame and I'll show you now. This I will add in this. This is the kesari rasgulla we have. So we will dip it here and we will leave it for some time in this. As it is little warm, it will become soft after some time. We will keep it here, or I'll keep it here. This we'll do it on later stage. Now I will make the rabdi out of it, of the milk. This is the full fat milk. I'm using around 150 ml of milk I'm using, because I'm making it in a very small portion. So I will make a rabdi dip out of it. We'll make a rabdi. Keep on stirring the milk while this is getting boil, and here I am using a little. I'll use this brown sugar to, instead of a normal table sugar or the castor sugar, मैं ये जो brown sugar है, ये भी ये मेरा नया venture है, इसको मैं sale करता हूँ. तो anybody who wants this brown sugar, जिसको ये चाहिए, you can inbox me, you can take the number from me, and I'll be happy to send it to you. And this I'll be adding in this the dip which I am making from the milk. ये मैं दूध में डालूंगा, जो हम रबड़ी बनाएंगे, ये मैं ब्राउन शुगर डालूंगा इसमें. तो ये एक हेल्दी होता है, क्योंकि आज की डेट में जब हमारा इतना कोरोना चल रहा है, वी शुड अवॉइड ऑल व्हाइट. आई ऑलवेज रेकमेंड, मैं लोगों को बोलता हूँ कि हमें गुड़ खाना चाहिए, या खांड खानी चाहिए, या ब्राउन शुगर खाना चाहिए. तो मैं ये ब्राउन शुगर डालूंगा इसमें, ये इस वाली रबड़ी में. और मैं आपको और भी बता देता हूँ, ये मैंने जो ये चाट का भी मैंने मीजा करके रखा हुआ है. ये आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी. ये स्ट्रॉबेरी जैसे हम सबको पता है कि ये खट्टी होती है खाने में. तो हम जो सौंठ बनाते हैं अमचूर की या इमली की, उसकी जगह में ये स्ट्रॉबेरी यूज करूंगा. और उसमें भी मैं ये वाली शुगर डालूंगा, ब्राउन शुगर, क्योंकि जब हम ऑथेंटिक सौंठ भी बनाते हैं तो हम उसमें गुड़ और अमचूर डालते हैं. तो ये भी खट्टा होता है स्ट्रॉबेरी, और मीठा भी होता है. तो थोड़ा सा मैं ये डालूंगा, ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ब्राउन शुगर डालूंगा. और स्ट्रॉबेरी को थोड़ा सा एक कंपोज बना के मैं मिक्सी में इसको एक ब्लेंड कर दूंगा. तो ये एक हमारी बहुत अच्छी, ये सौंठ को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हम इसमें बंगाली छेना यूज कर रहे हैं, रसगुल्ला. तो हम अमचूर नहीं यूज करेंगे हम, क्योंकि हर चीज वाइट है इसमें और चाट है. तो हम इसमें स्ट्रॉबेरी फ्रूट बेस यूज करेंगे, क्योंकि अब बहुत अच्छा फ्रूट आ रहा है हमारे पास, स्ट्रॉबेरी आता है. तो व्हाई नॉट टू ट्राई विद स्ट्रॉबेरी. और इतना खट्टा नहीं होता, और उसमें चीनी बहुत डलती है सौंठ में. वो इफ एनीबडी इज डायबिटिक तो वो कई बार अवॉइड करते हैं. तो ये फ्रूट बेस्ड चटनी है, तो अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें चीनी कम डालेंगे. अभी हमारी ये रबड़ी विद इन 2 मिनट्स तैयार हो जाएगी. तब तक हम अपनी, और जो हम वो बनाएंगे, जो आपको मैं बता रहा, गुजिया बनाएंगे. ये उसका एक डो मैंने पहले ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है. इसका मैं आपको रेशियो बता देता हूँ. अगर आप 100 ग्राम या 1 kg ऑफ फ्लावर लेंगे, तो 250 ग्राम 200 या 250 ग्राम के बीच में आपको इसमें एक मोइन लगाना पड़ेगा घी से. आप तेल भी डाल सकते हैं, वनस्पति या देसी घी डालना चाहिए. और थोड़ा सा वार्म वाटर लेके, हल्का गुनगुना पानी लेके एक टाइट डो लगाना चाहिए
आपको लगाना है और उसको थोड़ी देर रख दीजिए आप रेस्ट के लिए, और फिर आप ऐसी शेप में इसको एक पार्सल बना के जैसे गुजिया बनती है ये कर सकते हैं। और इसका जो मिक्सचर है, मिक्सचर भी मैंने बनाया, पहले ही बनाया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज खोया है ये एक खोए में मैंने इसमें डेसिकेटेड नारियल डाला हुआ है। अगर आपके पास जो सूखा नारियल होता है, गोला कस होता है या गोला, आप वो डाल सकते हैं। चॉप बादाम है, काजू है, मोटी सौंफ है, इलायची पाउडर है। आप ये खोए में मिलाकर ये इसमें मैं स्टफ करूंगा, जो मैं स्टिक्स बनाऊंगा, इसकी मैं स्टिक्स बनाऊंगा और एक ये डिप बना रहा हूं, इसके साथ इसको सर्व करेंगे हम। ये रबड़ी हमारी बनने वाली है। Any questions till now? Anybody? If anyone आप has खोया ला question, you can unmute yourself and ask. आप मार्केट से खोया ला सकते हैं, मावा आप बोल सकते हैं जिसे। आप किसी भी जिस दुकान पर दूध मिलता हो या दही की दुकान हो जहाँ दूध सेल करते हो तो वहाँ खोया जरूर मिलता होगा। आप वहां से खोया ला सकते हैं जितना आपको चाहिए। और एक जैसे सपोज आपको आज गुजिया बनानी है तो आप एक दिन पहले खोया लाकर, मान लो आप अगर 100 ग्राम ला रहे हैं खोया खरीद कर, तो उसमें 1 टेबल स्पून आप शुगर डाल दें। उसमें आप 1 टेबल स्पून शुगर डालकर टेम्परिंग कर दें। इसको स्लो फ्लेम पे एक कढ़ाई में आप डाल दें और उसको छोड़ दें ओवरनाइट। जब आप नेक्स्ट डे इसको करेंगे तो ये ऐसे आपका खोया बन जाएगा। उसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट, ये सब डाल सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। There is a question from Premlata ma'am that Yes, if brown sugar is put in milk, just let me read it out. Won't it split? No. We will add it at the last stage. We will not warm it up. We will add it at the last stage. Like we get when you make the mishti doi or the good rabdi, we add good in the end, not while when जब हम दूध को बॉईल कर रहे होते हैं तब नहीं डालते कभी भी। जब ऑलमोस्ट हमारी दूध हमारा गाढ़ा हो गया होता है हम तब उसमें डालते हैं। अभी मैंने ये खोल के रख लिया है। अभी एक मिनट के लिए और मैं इसको करूंगा, उसके बाद इसको डाल के सूप बाउल में मैं इसको उतार दूंगा। अब आप ये देख सकते हैं ये हमारी रबड़ी बन गई है। ये देखिए लच्छा आ गया, मलाई आ गई, ये हमारी रबड़ी बन गई। अब हम इसको स्टेज पे उतार देंगे, क्योंकि हम ज्यादा पकाएंगे तो और ये खोया की तरफ चला जाएगा। हमें इसको खोया नहीं बनाना, इसको रबड़ी बनानी है। अब हम इसको उतार देंगे और लास्ट स्टेज में इसमें हम ये शुगर मिलाएंगे थोड़ी सी, एज पर योर टेस्ट। ये हम इसमें मिला देंगे और इसको इसमें उतार देंगे। जब तक ये ठंडा होगा ये अपने आप गाढ़ा भी हो जाएगा। और इंडियन मीठा है तो इलायची पाउडर इज अ मस्ट। इलायची पाउडर के बगैर कुछ नहीं बनता।
हमारे पास ये कार्डमम पाउडर रखा हुआ है, इलायची पाउडर, थोड़ा सा ये डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये मेरी बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं हुई, ये हमारी गाढ़ी रबड़ी बन गई है, ये स्प्लिट नहीं हुई, ये आप देख सकते हैं, ये मेरी स्प्लिट नहीं हुई, और ये ठंडी होगी तो और थिक हो जाएगी। इसको हम जब तक साइड में रख देंगे। अब हम चलेंगे, विल मेक दी स्टिक्स ऑफ द गुजिया, हम गुजिया स्टिक्स की तरफ चलेंगे। और ये साथ के साथ हमारे ये स्पॉन्ज भी हो गए हैं, ये देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हो गए। भरत, आपका वीडियो ऑफ है। जस्ट होल्ड ऑन। And the request is that you please explain both in English and Hindi. Okay, okay, ma'am. Okay. Thank Ma'am, you. now it is visible, na video? Okay. Yes, it is. Okay. अब जो है ना, हम इसको रोल करेंगे पतला, ये हमारा गुजिया के लिए, इसको हम अपने डिजायर्ड शेप पे इसको रोल कर देंगे, और एक पैन में जब तक हम घी डालकर इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। ये वार्म होता रहेगा। हम इसे पतला रोल करेंगे। कभी भी आप कहीं से भी गुजिया लें, उसका जो डो होना चाहिए, जो आउटर जो मैदे का जो कोटिंग होती है, वो हमेशा पतली होनी चाहिए। जितनी पतली होगी उतनी अच्छी गुजिया होगी। जितनी मिठाई में चीनी कम होगी, मिठाई महंगी होगी। शुगर फ्री स्वीट्स आर ऑलवेज एक्सपेंसिव। ये कर लिया हमने, इसको हम थोड़ा सा शेप में स्क्वायर काट लेंगे। एक और रोल कर लेंगे। Please unmute, the background noise is coming. I will do one more. हम एक और कर लेंगे। There's a request, if you could please show it from near. It's not that visible. Thank you. Thank you. There's a question from Miss Malika that the dough is made up of what? Yeah, ma'am, we have this is made up of flour. हम फ्लावर, जो नॉर्मल रिफाइंड फ्लावर होता है, मैदे से बनती है गुजिया। ये सिंपल मैदा है,
मैदे से इसका डो बनाया है हमने। हम पर्पसली थोड़ा थिन रोल कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको स्टिक्स बनानी है। She's asking only maida and water. Yeah, maida, water and ghee. The proportion is 1 kg of maida, 1 kg of maida and 250 grams of ghee, and the water as warm water for the dough. और जब भी हम बनाते हैं तो पानी, इसके चारों तरफ पानी लगा देंगे और इसको रोल कर देंगे। There is a query from Prema ma'am. Does the dough need to be hard, not very soft? Yeah, not too hard, not too soft. I think अगर आप आटे के कंपैरिजन में बताएंगे भरत, people might understand better. आटे से ज्यादा सॉफ्ट होता है या आटे से कम सॉफ्ट होता है? आटे में, आटा जो है ना उसमें व्हीट होता है तो वो बाइंडिंग नहीं आ पाती। जब आप गुजिया बनाएंगे तो उसमें एक बाइंडिंग लाने के लिए हमें मैदा ऐड ही करना पड़ेगा। वो हार्ड बनेगी। अगर आप आटे से बनाएंगे तो वो हार्ड बनेगी। अच्छा, लेकिन आटे के कंपैरिजन में ये डो ज्यादा नरम होता है? यस यस, ये सॉफ्ट डो होता है। आटे के कंपैरिजन में सॉफ्ट डो होता है ये। अच्छा, थैंक यू। इस पे साइड्स में एजिस पे वाटर लगाएंगे और इसको सील कर देंगे तो ये हमारे गुजिया सिगार्स बन गए। ये हमारी गुजिया सिगार्स बन गए। इसको हम लाइट हीट, स्लो फायर पे फिर हम फ्राई करेंगे इसको। We have another question. Is there a filling also in the gujia, sir? Yeah. This is khoya. This is normal khoya, and you can add any dry fruit of your choice. आप उसमें बादाम, काजू टुकड़ा, बादाम को चॉप कर, नारियल, सौंफ, इलायची पाउडर, ये मिलाकर जो भी आप नट्स डालना चाहते हैं, पिस्ता डालना चाहते हैं, आपके ऊपर है, आप डालें। और इसको जो शेप मैंने आपको दिखाई थी, ये तो बड़ी कॉमन शेप है, इसमें भी आप कर सकते हैं। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक डिफरेंट होता है और इतनी बड़ी गुजिया आजकल कोई खा नहीं पाता, तो ये ऑन द गो भी लोग खा सकते हैं। ये इस तरह इसको हम फोल्ड करेंगे साइड से, क्योंकि लिए इसके अंदर घी नहीं जाएगा और हमारा जो खोया है वो खराब नहीं होगा और घी भी खराब नहीं होगा हमारा। ये हमने रोल कर दिया और इसको दोबारा से ऐसे रोल कर देंगे, सिंपल। ये इसको इस तरह रोल कर देंगे। ये एक और तैयार हो गया हमारा। एक और कर लेते हैं इसी तरह। क्योंकि आजकल जो मिठाइयाँ चलती हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज में लोग खाना पसंद करते हैं। छोटे साइज हो तो और ज्यादा उनको अच्छा लगता है, क्योंकि ऑन द गो भी खा सकते हैं और कम मीठा जाएगा, कम मीठा खाएंगे। आप इवन जब आप ये लाए हैं खोया, आप उसमें जैगरी पाउडर भी डाल सकते हैं। ये जैगरी पाउडर है, ये भी आप एंड में डालें। जब आपका खोया मेल्ट हो जाएगा, गैस से उतारने के बाद आप थोड़ा सा ये डाल सकते हैं। जितना भी आप क्वांटिटी लाते हैं उतना आप डाल सकते हैं।
अब इसको हम फ्राई कर लेंगे. Somebody is asking that they can't see how you're making the corners. ओके, मैं आपको एक और दिखाता हूँ. थोड़ा पास. नाउ इट इज विजिबल. Ma'am, now it is visible. Yes, it is. Yeah, thank you. See, it is done now. Now I'll cut it. If you can have a square cookie cutter, you can use your cookie cutter. You have to apply a little water on all the sides. Now we'll take some khoya. You can skip khoya. You can add all the dry fruits only, all the nuts. If you want to have all nuts, you can add all nuts. Bharat, is it okay to use white sugar? Because somebody wants to know what is the difference between brown sugar and white sugar. White sugar, the scientific process is white sugar is filtered. It lot of we add chemicals to it. Sulfur is added to make it white, and for the juice from the sugarcane we add lot of sulfur to it, and it is crystallized, and it goes through several processes and it turns white. Whereas the brown sugar, the jaggery, we don't add anything, any chemical to it, any sulfur to it. Sulfur has a chemical property of bleaching it, cleaning it, so it does makes it a white table sugar, and all the important elements are lost when we add this sulfur to it. Whereas jaggery and the brown sugar, we don't add anything. It is just filtered, clean, and then it is crystallized. Yeah, thank you. We can test whether our oil, yeah, it has come to a desired temperature. We'll add on a slow flame. The idea is to basically deep fry them. Yeah, gujia is always deep fried. Nowadays, we sometimes sell sweets also in Delhi. So we are experimenting with baking also now. But we are just trying it this year. The baked gujia. I see. That's interesting. Yeah, because we sell sweets in Delhi. We have a very 80-year-old. I am the third generation selling it. So we are trying this year. But commercially, it is not viable. Why? Because obviously, when we fry it, the taste is different, and when we bake it, the taste is different. That is the thing. True, true. And our rabdi is also ready. You can see this rabdi is also ready. We have the gujia in two different shapes here. Yeah, this is the normal parcel gujia which we make. And you can fry in desi ghee. Obviously, gujia is best in desi ghee only. We should not use
oil, well, we are making the Indian sweets. Either desi ghee or the vanaspati is used. And sometimes I'll see a lot of people using condensed milk in Indian desert. That is not advisable to use that, because that is a very shortcut method. वो बहुत आसान तरीका होता है condensed milk डालना, क्योंकि बहुत लोग ये नहीं बना पाते, रबड़ी नहीं बना पाते, वो condensed milk डाल देते हैं. Condensed milk, क्योंकि वो just milk को boil किया, 2 tablespoons condensed milk डाला, वो your this is ready, रबड़ी is ready. क्योंकि कौन दूध को उबालेगा और करेगा, तो उस चक्कर में एक और क्वेश्चन आया है भरत, डू यू ऐड शुगर टू द डो? No, never. We should not add sugar in the gujia dough, क्योंकि हम चीनी डाल देंगे तो फिर वो लाल हो जाएगी ना, और घी में जाकर खराब हो जाएगी. जो डेजर्ट कई बनते हैं जिसमें हम फ्लावर में चाशनी भी डाल के उसका डो बनाते हैं, तो वो डीप फ्राई नहीं किया जाता, उसको हम ज्यादातर शैलो फ्राई ही करते हैं. जैसे हम लोग सिंधी हैं, तो हमारा एक फेस्टिवल आता है खदरी, कुछ जो सिंधी लोग देख रहे हैं तो वो समझ जाएंगे. तो हम एक मीठी रोटी बनती है, तो वो हम उसको शैलो फ्राई करते हैं या फिर उसको तवे पर सेकते हैं. अब जब तक ये हमारी गुजिया होगी, हमारी रबड़ी तैयार हो गई, हम इसकी प्लेटिंग की तैयारी कर लेते हैं. सो गुजिया को बेसिकली आपको ब्राउन करने तक फ्राई करना है. या गोल्डन ब्राउन, एंड वी विल टेक इट आउट एट 95% एंड वी विल कीप इट. जब हम उसको थोड़ी देर निकालने के बाद रख देंगे तो वो और लाल होती है. अगर हम बिल्कुल उसको लाल कर डिश आउट करेंगे, निकालेंगे, तो वो जल जाएगी, क्योंकि आफ्टर निकालने के बाद भी हीट रहती है उसमें और वो पड़े पड़े लाल हो जाता है. एक स्टेज पहले निकालते हैं. जो भी हम इंडियन डेजर्ट, जो भी हम मिठाई बनाते हैं, तो उसको हम एक स्टेज पहले उतारते हैं. अगर हम चाशनी भी बनाते हैं तो हम एक तार की चाशनी आती है तो उतार देते हैं. जब तक हम उतारेंगे तो 2 तार की चाशनी हो जाएगी वो. अगर हम दो तार की चाशनी उतारेंगे तो वो 3 तार पे आ जाएगी, बहुत थिक शुगर सिरप हो जाएगा वो. जब भी मिठाई बनाते हैं तो एक स्टेज पहले उतारते हैं. अगर हम लड्डू बनाते हैं बेसन का, तो हम जब बेसन बिल्कुल लाल हो जाता है तब नहीं उतारते, एक स्टेज पहले उतारते हैं, क्योंकि जब हम इसको रखे रहेंगे, वेरी गुड टिप, तो वो लाल अपने आप हो जाएगा, क्योंकि एक उसमें और अपनी क्वेश्चन लेटरल. जी, एक और क्वेश्चन है, आपने खोया रोस्ट किया था क्या? नहीं, खोया रोस्ट नहीं किया था. एक दिन पहले लाकर खोए की टेम्परिंग करी थी. कढ़ाई में आप खोया डालिए लो फ्लेम पे, और अगर 100 ग्राम खोया ला रहे हैं तो 1 टेबलस्पून आप उसमें शुगर डालें और दोनों को इकट्ठा हीट करें, तो वो खोया मेल्ट हो जाएगा. खोया मेल्ट हो जाएगा और उसको उतनी देर स्लो फायर पे कुक करें. जब उसमें एक बॉयल आ जाए, जब एक बॉयल आ जाएगा तो आप उसको उतार दीजिए. We have और another एक question. Will you dip these in sugar syrup? Yeah, we can dip in sugar syrup, and you want to avoid it, you can avoid, क्योंकि इसमें जो खोया है वो भी मीठा है, जो हमने ये बनाई रबड़ी बनाई है वो भी मीठी है. तो आज की डेट में अगर जिसको चाशनी वाली नहीं खानी गुजिया, तो वो ऐसे भी खा सकता है. ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है. मैं तो ऐसे ही खाता हूँ, चाशनी में डिप भी करता. आई हैव मैं इसके साथ चाय भी लेता हूँ, प्रेफर करता हूँ. तो इट एक्ट फॉर मी, इट एक्ट एज अ कुकी और अ बिस्किट फॉर मी. सो आप चाशनी में डिप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. मैं दिखा दूंगा आपको चाशनी भी.
ये ऑलमोस्ट हमारी होने वाली है। बहुत अच्छा कलर आ गया हमारा, एंड आफ्टर 30 सेकेंड्स मैं इसे डिश आउट कर दूंगा। ये मैंने चाशनी, थोड़ी केसरी चाशनी बनाकर रखी थी, मैं आपको वो भी डिप करके बताऊंगा। अब ये गुजिया की स्टिक्स ऑलमोस्ट हो गई हमारी, अब हम इसको उतार देंगे, अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। अब आप ये नोट करना, ये जो कलर है विद इन 1 मिनट इसका कलर चेंज हो जाएगा। एक और टिप मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आपका घी या ऑयल बिल्कुल साफ होगा, बिल्कुल क्लीन होगा, अगर आप सिंगल यूज कर रहे हैं, तो आपकी गुजिया जो है या जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे या मट्ठी बनाएंगे वो बिल्कुल वाइट निकलेगी, आई मीन क्लीन निकलेगी। बहुत वो लाल जल्दी नहीं होगी, मगर वो कच्ची भी नहीं होगी। There is a request if you could also explain it in English. Some of the people do not understand Hindi. Okay, sorry, I'm so sorry. अब आप जैसे ये मैंने जिस स्टेज पे निकाल दिया, अब मैं इसको छोड़ दूंगा, ये लाल हो जाएगी अभी, क्योंकि मैं इससे ज्यादा पे निकालूंगा तो ये और लाल हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। मैं आपको ये वाली गुजिया डिप करके दिखाऊंगा चाशनी में। So what Bharat is saying is that due to latent heat, the color becomes a little more brown. Yes, correct. Yes. थोड़ा बादाम दे दी। अब हमारी गुजिया भी हो गई ऑलमोस्ट। So Bharat, what you were saying earlier was that if the oil is as clean as what it is now, yes. This is an indicator that it has been a good frying job. You've done it well. Yeah. Right. और मैम अगर आपका घी जैसे आप बिल्कुल साफ है, फर्स्ट टाइम भी यूज कर रहे हैं और कुछ मैदे की जैसे गुजिया ही बना रहे हैं, तो जो ओवरऑल फिनिश आएगी ना फ्लावर की, वो बहुत नीट आएगी। उसमें जो कलर होगा बहुत अच्छा इवन कलर आएगा, बहुत ज्यादा लाल नहीं होगा, और टेस्ट भी जैसे यूज घी का टेस्ट नहीं आएगा आपको। Right. अब ये गुजिया हमारी हो गई। It's always advisable to have fresh oil, fresh ghee while making these gujiyas. Yeah.
Now you can see our gujia is almost done. Now we will dip it Yes. in the sugar syrup, and we will So the keep it here. question is, how thick is the sugar syrup? Can you just move the bowl a little to show how thick it is, or take a spoon and Yeah. dip a spoon in it, and so that people are able to see how thick it is. Yeah, perfect. Thank you. It is like this. If you are using 100 grams of sugar, just add 1 tablespoon of or 2 tablespoons of water. That's it. Okay, thank you. And you can use saffron in it. I've got some saffron. You can see these saffron strands here. I've added some saffron strands. And we will dip this in the sugar syrup. तो अभी आप इसको एक तार चाशनी बोलेंगे या 2 तार चाशनी? एक तार चाशनी भी नहीं बोलेंगे हम, एक तार से थोड़ी कम बोलेंगे. अच्छा. आप ये क्योंकि आप ये देख सकते हैं इसमें एक तार नहीं बन रही है अभी. एक तार जब बनती है तो क्लीन यू कैन सी अ वन स्ट्रिंग ऑफ शुगर. राइट. और ये हमारी अभी हमारी शुगर डिप हो गई है. अब हम इसको निकाल लेंगे इसमें. सो भरत, जब आपने इसको उसमें डिप किया तो क्या चाशनी ज्यादा गर्म थी? इट इज ऑन अ वार्मर साइड. अच्छा. इट इज दैट हॉट, that temperature like we drink the milk on that temperature. Okay. Around Thank you. 60-70 degrees. Okay. And now we can garnish this with any nut. So this is the original gujia of Holi. You can have that. And now I'll show you the gujia sticks which I have made, and I am adding the rabdi. You can add good also to the rabdi at the last stage. This can act. This rabdi will act as a dip. You can serve it as a after meal sweet snack, you can say. But when you add gur, the color of this rabdi will change. Is that okay? Yeah, obviously. Yeah. It will turn to brown. You can add it like that. Going a step earlier, when you dipped this in the chashni, in the sugar syrup, how long do you recommend that we leave it in the sugar syrup? You can leave it for 10 around you can 2-3 minutes. Okay, that should be sufficient. 2 or 3 minutes. Yeah, and then okay. Yeah, and then take it out. Okay, perfect. Thank you. Yeah. This is your gujia sticks with the brown sugar. You can garnish it with the flakes of almonds. I had the almond flakes. They look very tempting. Thank you. Hope the recipe is as easy when we try it also. And this is really innovative. It's really innovative. Yeah. Now we'll go towards our this rasgulla chaat. See, I have added. I had added this in the warm water. See, I have added in the warm water. Now you see the consistency of it. It is very soft. Now the tip is when we take chhena, we take cow milk. We don't take the buffalo milk because the cow milk has a lower fat consistency, whereas जो भैंस का दूध होता है उसमें fat content ज़्यादा होता है. It is more than 6% fat, and the cow milk has around 3 to 4% of its fat. That is why जो हम बच्चों को जब हमेशा recommend करते हैं वो गाय का दूध recommend करते हैं छोटे बच्चों को. It is easy to digest.
So are these ready-made rasgullas? Yeah, these are ready. We make it in our kitchen, so it is ready. You can buy it from any sweet shop, or you have the leftover, even the small the ये तो बड़े हैं, अगर जो छोटी आपके पास रसगुल्ली भी होती है तो उसका भी बन सकता है. तो अब हम इसको स्क्वीज आउट कर देंगे, क्योंकि अब इसमें चाशनी नहीं रहेगी, अब इसमें चीनी हमारी निकल गई है. Okay. So that is the reason that you dipped it in warm water, so that the extra sugar could go up. It could be removed. Yeah, right. Yeah. हम इसको निकाल देंगे, and again we will add some water to it because it will absorb water. जो थोड़ा बहुत मीठा होगा वो होगा, उसकी कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम वार्म वाटर डालते हैं इसके पीछे एक साइंस होता है. क्योंकि जब हम 1 kg ऑफ मिल्क लेते हैं ना, तो जो मिल्क जो हमारे पास जो एक्चुअल क्वांटिटी जो सॉलिड्स होते हैं, मिल्क सॉलिड्स इज 25%. वी गेट 200 to 250 grams of छेना व्हेन वी curdle 1 liter of milk. The ratios are very इसको I guess. इसको हम ठंडे पानी में रख देंगे, और हम अपनी अब फटाफट से स्ट्रॉबेरी डिप बनाएंगे जो सौंठ का काम करेगी. ग्रीन चटनी हमारे पास है, दही हमारे पास है, चाट का मसाला हमारे पास है. So Bharat, instead of rasgulla, can we not use paneer instead? No, not paneer, because paneer is made from the I told you it is has a lot of fat, more fat content. We'll chop the strawberries. You can even straight away puree it. Better I will puree it quickly. It's one and the same thing. I will boil it and then puree it. One I'll keep for garnish. Any plant-based sweetener is always good for health. More the things which are man-made, it goes through different stages of manufacturing, are bad for our body. That is the simple rule we have to keep in mind. Plant-based, anything is good for our health. Whatever grows above the ground and under the ground is always good for our health. More things we make, the humans make, that things are bad for our health. जितनी हम चीजें जो इंसान चीज को बनाएगा
उतनी चीज खराब बनेगी, वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होगी। तभी आप देखोगे गांव में लोग हेल्दी होते हैं एज कंपेयर टू मेट्रोज। Are you doing this on low flame? Yes, ma'am. I am doing it on a low flame. Similarly, again, I will add the brown sugar. The basic formula is whatever brown is in your diet is always good. Whatever brown, any brown and any plant-based ingredient is always good for your health. The GI index, the glycemic index is always low. And whenever the glycemic index is high, our pancreas will excrete insulin in our body to control that sugar, and it converts into fat. And if your pancreas are not excreting insulin, then we are not healthy, we are diabetic. So similarly, brown sugar and brown rice are better. Any ingredient which has a husk to it, which is brown, it has a fiber controls your blood sugar. It controls the glycemic index. Any doctor here can correct me if I am wrong. Now it is ready. We'll add a little bit of black salt. That's it. We'll add some salt to it. So when do you start adding these? What is the indicator that the strawberry is done? Yeah, initially it has a lot of water. Now we'll add it. Now it is into a puree form, more thick. Okay. Now I'll add the sugar. Now we'll add the. Now sugar will also release some water. So in about 7 to 8 strawberries, you added about 4 or 5 spoons of brown sugar. Not 4 or 5, but around 1 tablespoon. That's it. Okay. Because our sponge, the chena is also sweet, so I'm not making it too sweet. Right. Now the chutney is ready. So there's a question that can we use khajur instead of strawberry? Yes, khajur is top ingredient to use in the chutney. It is a noble ingredient. Yes, we can definitely use khajur, and we use khajur. जो authentic दिल्ली की चटनी बनती है सॉफ्ट, उसमें खजूर भी ही डलता है. अब हमारी चटनी बन गई. अब हम दही को रेडी कर लेंगे.
battery. We will whisk our curd. And I'm using this mitti ka kullad, you can say, or the kasora, you can say, to serve the chaat. Now I'll show you the दिल्ली की चाट का मसाला, जो दिल्ली हमारी मशहूर है चाट के लिए, उसका मसाला मैं आपको दिखाता हूँ. आप कभी भी बना सकते हैं अपने घर में और आपको बाजार जैसा टेस्ट आएगा. So there was a question from Darshana about sugar and date khajur being used simultaneously. So Bharat, if you could please answer that. Khajur is dates. So somebody's asked whether dates. Sugar and dates should be used simultaneously. Then if we are using date, half dates and half sugar. Okay. And the next question is, what did you add in the curd? I have not added anything in the curd. It is just a plain curd. I am whisking it. Okay. All right. Though in the chaat, some people add little bit of sugar to it. जो दिल्ली की चाट होती है उसमें चीनी भी डालते हैं कई, पर मैं नहीं डाल रहा चीनी, क्योंकि वो हमारा जो रसगुल्ला वो ऑलरेडी अंदर से तो स्वीट ही है वो. और ये मैंने गार्निश के लिए थोड़े अनार और स्ट्रॉबेरी रखा हुआ है. ये हमारी चटनी रेडी है. मैं आपको मसाला दिखाऊंगा सौंठ का, जो चाट मसाला होता है, बस आप वो डालें और आपका मसाला तैयार. जो एक टिप देता है, अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे अपना जीरा, काली मिर्ची, साबुत धनिया, थोड़ा सा साबुत धनिया डालेंगे, कोरिएंडर, कई इसमें लौंग भी डालते हैं, वो आप ऑप्शनल है. इफ यू कैन हैव अ टेस्ट ऑफ क्लोव्स, अगर लौंग का टेस्ट है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हैं. आपने नोट करा होगा मैंने इसमें टेबल सॉल्ट यूज नहीं करा, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से. और जो चाट होती है असली टेस्ट काला नमक होता है, उससे भी आता है. So there's a compliment for you. Gujia sticks are quite innovative, and so is strawberry dip. Thank you so much. आप अमचूर की चटनी भी बना सकते हैं, खजूर और अमचूर की भी चटनी बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मल दाल के भल्ले या पकौड़ी बना रहे होते तो हम सौंठ भी यूज कर सकते थे, क्योंकि अब ये हमारा छेना है, रसगुल्ला है, तो why not use fruit based chutney, fruit based dip. Initially I was thinking of using kiwis also, kiwi की dip की एक चटनी मैं सोच रहा था, but I could not get kiwi, so
next time I'll definitely show you something of kiwi also. ये हमारा ड्राई रोस्ट हो गया। अब हम इसको एक बाउल में निकाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। और सिमिलरली जब हम होल स्पाइसेस को रोस्ट करते हैं, ड्राई रोस्ट, उसको बिल्कुल भी हम स्लो फ्लेम पे करते हैं और ज्यादा हीट कभी नहीं करते, क्योंकि इसमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। अगर हम वो बहुत जल्दी बर्न हो जाते हैं। और आप घर में भी कोई इंडियन डिश भी बनाए, जब आप प्याज भूनने वाले हो, जब आपका ब्राउन होने वाला हो अनियन, तब आप होल स्पाइसेस डालें, जीरा या होल स्पाइसेस आप तब डालें लास्ट में। देन यू सी द डिफरेंस ऑफ द टेस्ट ऑफ योर डिश। क्योंकि हम लोग गलती करते हैं कई कि हम लोग पहले डाल देते हैं खड़ा मसाला। जो भी हम बिरयानी बनाते हैं या खड़ा मसाला जो भी डिश बनाते हैं, उसमें हम पहले डाल देते हैं और हमारी जो गरम मसाला होता है वो बर्न हो जाते हैं और वो टेस्ट, कड़वा टेस्ट आता है बहुत। So we must roast the spices at low flame. And those spices were whole coriander, black peppercorns, and cumin seeds. Cumin seeds, yes. जीरा तो बहुत अच्छा होता है for everything, for lactating mothers, new mothers. हमारे किचन में जो भी स्पाइसेस होते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं, वो इम्यूनिटी बूस्टर है। आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है बाहर से, इम्यूनिटी बूस्टर ऑल सच क्रैप हमें लेने की जरूरत नहीं है। हमारे किचन में बहुत कुछ है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आप एक्सरसाइज करिए और योर इम्यूनिटी विल बी ऑन द टॉप। अब ये इसमें से हम इसको निकाल लेंगे। इसको इसमें डाल देंगे। So we'll be squeezing out the water again. या क्योंकि जब आप अगर आप दाल का भी भल्ला बनाएंगे तो पानी निकालते हैं, उसका आपने नोट करा होगा। उसका हम पानी निकालते हैं, क्योंकि अगर हम पानी नहीं निकालेंगे तो हमारी सारी दही में पानी पानी हो जाएगा और चाट बेकार हो जाएगी। थोड़ा सा मसाला पहले डालेंगे हम, इलायची पाउडर, और उसके बाद ये जो स्ट्रॉबेरी की हमने चटनी बनाई है ये डालेंगे। आप ये मसाला इसमें भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें इसमें भी डाल सकते हैं आप। ये इसमें हमने डाल देंगे। थोड़ी हरी चटनी, काला नमक, और ये दही हम डाल देंगे। ये हमारा तैयार हो गया। गार्निश के लिए दो थोड़ी सी चटनी, और ये हमारी चटनी हो गई। हमारा चाट का मसाला, काला नमक, और हमारा गार्निश के लिए अनार और चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज, ये आप डाल सकते हैं। So this would have a khatta meetha taste. Yes, chaat is always खट्टी मीठी। You have all the ingredients. It looks delicious. This
Chana chaat is ready. If you could show us both the dishes together. That looks These so are- wonderful. Thank you. Hope I have done justice a little bit. Definitely, definitely. Absolutely. We started feeling hungry while watching all this food. I think all of us feel prepared now for Holi. Absolutely. We've got 2 new things to try. And hope I did justice for all our senior citizens. I'm just learning. So And for more such great dishes, I think everybody should subscribe to Chef Bharat Kemani's YouTube channel, where you can get all the dishes. My heartiest request everybody that please subscribe to my YouTube channel, Indian Bento Chef by Chef Bharat Kemani. You can go to the YouTube and search it. I'll be obliged and blessed to have your subscription. And So the compliments pouring in, Bharat. Very nice presentation, mouth-watering dish, awesome, good preparations. Wow, very chatpata, yummy. Thank you very much. So thank you. that's what we've got for you. Thank you so much. That looks amazing. Yes. Thank you. Very good. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. So Bharat, one quick question to end it all. What was the prep time that you took? The preparation that you did before starting prep time, the work? It hardly, if you have all the ingredients, it hardly takes 1 hour to get things ready. If you are making in a smaller quantity, yeah, definitely. If you are making for your family, half a kg of dough of the flour is hardly 1 hour you will take with everybody at home to help, or if nobody is there to help, hardly takes 1 hour. ग्रीन चटनी धनिया की थी, ग्रीन चटनी या हाँ जी हरा धनिया. आप जो ग्रीन चटनी बनाएंगे ना, आप उसमें डालें हरा धनिया, हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, साबुत जीरा. यस. क्योंकि चाट में हम लोग अनियन और गार्लिक नहीं यूज करते. सर, भरत सर, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम बैंगलोर. एक छोटा सा डाउट है. आपने खोया जो हम मार्केट से लाते हैं, तो उसमें शुगर मिक्स करके रखना, कितनी देर तक मिक्स करके रखना शुगर? मैम, जैसे अगर आप सपोज 250 ग्राम्स आप खोया लाते हैं मार्केट से खरीद कर ना, तो आप उसमें आप राउंड अबाउट 50 ग्राम्स ऑफ शुगर आप डालें उसमें. ओके. और फिर उसको थोड़ा रोस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, उसको डाल के आपको कढ़ाई में थोड़ा खोए को मेल्ट करना पड़ेगा, थोड़ा लो हीट पर, और उसको लो हीट पे, और उसको आप कंटिन्यूस स्टर करते रहिए, क्योंकि आप छोड़ देंगे तो खोया नीचे लग जाएगा. तो उसके बाद जब आप उसको चलाते रहेंगे स्लो हीट पे, जब आपके खोए में एक बॉयल आ जाएगा, एक बॉयल आ जाएगा, आप उसको उतार दीजिए, गैस बंद कर दीजिए, और तभी भी उसको स्टर करते रहिए. आपने छोड़ना नहीं है स्टर करना, क्योंकि उसमें चीनी होती है, वो अगर हम छोड़ देंगे तो जो लेटेंट हीट होती है, वो जो कढ़ाई होगी वो उस पर स्टिक हो जाएगा. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू. उसको आप हिलाते रहिए. और अगर आप घर में बर्फी भी बना रहे हैं तो ये सेम प्रोसेस होता है बर्फी का. उसमें आप कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर थोड़ा सा, और 1 टीस्पून आप देसी घी डाल दें. ओके, थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट. थैंक यू सर. रसगुल्ला चाट वाला मिस्टर चाट आपसे. हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैम. आपने जो मोइन डाला ना मैदे में, कितना मोइन डाला गुजिया के मैदे में? आप मैम, अगर आप 1 किलो मैदा लेंगे तो आपको 250 ग्राम 200 से 250 ग्राम के बीच में घी डालना पड़ेगा. वो अगर आपका मैदा बहुत अच्छा है तो आपको 250 ग्राम घी डालना पड़ेगा. और अगर वो थोड़ा लाइट फ्लावर होगा, उसमें स्ट्रेंथ अगर मान लो कम होगी, तो आपको 200 ग्राम उसमें घी का मोइन लगाना पड़ेगा. नहीं, हम तो जैसे घी को गर्म करना चाहिए, कैसे ठंडा ही मिक्स करना चाहिए घी?
नहीं, थोड़ा सा तो मेल्ट करना पड़ेगा ना, तभी मोइन लगेगा। नहीं, एक बात पूछ रही हूँ, हम लोग तो मेंबर कम है, तो 1/4 किलो मैदे का अगर बनाएंगे तब उसमें कितना घी डालें? 2 चम्मच। 1/4 किलो में आप डालें कम से कम 40 से 50 ग्राम डालो आप, बस 1/4 डलता है ना, अगर 20% डलता है हमारा, 20% डलता है। आपने रसगुल्ले का क्या बताया था? रसगुल्ले की चाट बताई थी? हाँ, रसगुल्ले की चाट बताई थी। रसगुल्ले की भी चाट बना, उसको निचोड़ के उसमें दही में डाले उन्हें फिर? हाँ, जैसे अगर आपके घर में रसगुल्ला बच जाता है, या बड़े वाले या छोटे वाले, आप थोड़ा पानी को गर्म करें, पानी को गर्म करके गैस बंद कर दें, उसमें वो वाले अपने स्पंज जो रसगुल्ला है वो पानी में डाल दें। अच्छा, फिर तो वो अपने आप जो उसमें एक्सेस मीठा होगा और वो होगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा पानी में, और मीठा आपका उसमें से अपने आप बाहर आ जाएगा, रसगुल्ले वो स्पॉन्जी हो जाएंगे, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। इसकी चाट कैसे बनाएंगे फिर? Ma'am, we will be sharing the link of this video of the YouTube channel. You can see it again. Just I want to ask, उसकी चाट उसमें दही में डालेंगे उसे वापस? हाँ, उसके बाद जब आप उसको पानी में, उस पानी से निकाल कर ना, उसको दोबारा स्क्वीज करके उसको दोबारा पानी निकाल दो उसका। फिर एक साफ पानी लीजिए, ठंडा पानी, जो टैप वाटर होता है, जो नॉर्मल वाटर होता है, बॉटल वाटर, आप उसमें वो दोबारा वो स्पंज जो रसगुल्ले वो डाल दें उसमें दोबारा। ओके। और उसमें थोड़ी देर छोड़ दें। जब आपको चाट बनानी हो तो उसको निकाल के, जैसे हम दही जो दही पकौड़ी का भल्ला होता है, उसको हम हाथ के बीच में दबाते हैं, उसका पानी निकाल देते हैं, सेम वही करना है। वैसे ही उसको निकाल दीजिए, उसमें दही, सौंठ, चटनी, ये जो चाट का मसाला है वो, और आप अपना अनार डालें उसके ऊपर, जो भी गार्निश करना चाहते हैं, हरा धनिया, अदरक, वो डालें, और आपका छेना चाट रेडी है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच भरत। Thank you so much. Just to repeat, the name of the YouTube channel is Indian Bento, spelled as BENTO, Indian Bento. This is the full name, Indian Bento by Chef Bharat Khemani. You can please subscribe to this channel. I just did. Thank you. So we've come towards the end of the session, and anybody who has any questions, they can see the YouTube video that we will be soon posting the link to. So thank you so much. And please share me the recording. Yes, we will definitely. Yeah, definitely. Yeah, last time ma'am ne bheji thi recording. So this time we'll share the YouTube link. We will be uploading. Yeah, YouTube link. Yeah, definitely. Yeah. So thank you so much, Chef Bharat. Thank you, and thank you everybody for joining in. We've learned a lot today, so we all are prepared for Holi now. Thank you. मैम आपको अच्छा लगा मैम? बहुत अच्छा लगा।